Hello friends, today we are started session number 3, systematic of living organism. In this topic we are studied about the taxonomic categories, taxonomic hierarchy and unit of classification. So taxonomic category and hierarchy both are same topic. So what is taxonomic hierarchy? The taxonomic category was first given by Carolus Linnaeus or Carl Linnaeus in 18th century. So in taxonomic category, these are the hierarchy of classification of different types of individual organism, either plants, animal or bacteria, is classified according to their categories by observable characteristics. So now in taxonomic category में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है इन डिफरेंट टाइप्स, इन डिफरेंट ग्रुप्स. So they are called as a taxonomic hierarchy. So now the classification of this organism based on their observable characteristics. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो क्लासीफाई किया जाता है उसको वर्गीकरण बोलते हैं, अलग अलग ग्रुप में डाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. So there are 7 types of 7 characteristics used to classify a particular group of individual. The 7 categories are arranged in a descending order. जो 7 categories है किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने की, दे आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. तो कौन कौन से ऑर्डर यहाँ पे, फर्स्ट सबसे हाईएस्ट कौन सी है, किंगडम, देन फाइलम, class, order, family, genus and species. So these are the main 7 categories. So all these categories are arranged in a descending order. So आप लोग ये पहले जो स्टार्टिंग में डायग्राम दे सकते हो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन किया है. So these are the different categories: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So these are the different categories. So what is the aim of this taxonomic hierarchy? कैटेगरीज में हम लोग एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन द डिफरेंट कैटेगरीज, इन 7 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्ची एंड व्हाट इज देयर एम ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची? टैक्सोनॉमिक हायरार्ची का मेन एम क्या है? द मेन ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची टू स्टडी ईच ऑर्गेनिज्म and place this organism in a systematic framework in classification. So किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है सिस्टमेटिक वे से, और उसको एक पर्टिकुलर फ्रेम में, क्लासिफिकेशन में उसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है. So these are the manner of scientific grouping of different taxonomic category and all these are arranged in a descending order. So once again I will repeat, what is taxonomic hierarchy? The main of taxonomic study to assign each organism an appropriate place in a systematic framework of classification. किसी भी क्लासिफिकेशन में हर एक ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिक वे से उसको प्लेस देना, उसको जगह देना, these are called as a taxonomic hierarchy. And all these 7 categories which are there, they are arranged in a descending manner. और descending manner इस 7 categories में उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में 2 डेफिनेशन है, टैक्सा और उसको टैक्सॉन भी बोलते हैं. सो व्हाट इज टैक्सा और टैक्सॉन? टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सो व्हाट इज टैक्सॉन और टैक्सा? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which used to represent a concrete unit of classification. Okay, this unit or taxon may be large or small. तो term taxon was coined by H.J. Lamb. ये term taxa जो है किसने दिया था? H.J. Lamb. तो for example taxa of bird is aves. birds को किस में हम लोग taxa में क्लासीफाई करते हैं? in aves. Okay, टाइगर, ह्यूमन बींग्स, इसको किस में? मैमलिया. तो दीज आर द टैक्सा. सो व्हाट इज टैक्सा? इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच यूज टू रिप्रेजेंट अ कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. किसी भी क्लासिफिकेशन के कॉन्क्रीट यूनिट है, इसके हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स का लिया तो हम लोग उसमें एव्स में डाल, जितने भी बर्ड्स है वो सब एव्स में. सो दीज आर द टैक्सा.
और टैक्सा वर्ड किसने कॉइन किया था? H.J. लैम. सो व्हाट इज कैटेगरी? कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल इन द हायरार्ची क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी हायरार्ची क्लासिफिकेशन में जो रैंक और लेवल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेगरी. तो हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, ये सब कैटेगरीज हैं. सो व्हाट इज कैटेगरी? इट इज रैंक और लेवल इन द हायरार्ची क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ कैटेगरीज. तो यहाँ पे देखो हम लोग फॉर एग्जांपल देखेंगे. कैटेगरी ऑफ बर्ड इज कॉर्डेट्स. तो बर्ड्स किस में आते हैं? बर्ड्स को हम लोग टैक्सा एव्स यूज़ करते हैं, मगर वो एव्स टैक्सा जो है कौन सा कैटेगरी में आता है? कॉर्डेट्स में, क्योंकि उनको रीढ़ की हड्डी है. So they are included in chordates. So these are the categories and taxa. Once again I will repeat, what is taxa or taxon? It is a group of living organism which used to represent a concrete unit of classification. It may be large or small. Example, taxa bird including aves. Second one is, what is category? Category is a rank or level in the hierarchical classification of organism. It's called as a category. Okay. So in category the organism place in a rank or level. So category में birds, the taxa aves including chordates category. So these are the taxonomic hierarchy. So these are the two definition categories and hierarchy. Category means levels, 7 different groups of these are called as a category, and hierarchy means these are the unit of taxonomy. Means what is the main aim of the taxonomic hierarchy? To study to and assign the organism in appropriate place in a systematic framework of classification. किसी भी classification organism को appropriate place देना, उसको जगह देना is called as a taxonomic hierarchy. This is main aim है taxonomic hierarchy का. So हम लोग देखेंगे kinds of taxonomic categories. Okay, यहाँ पे हम लोग देखो there are 7 taxonomic categories. सबसे फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ये कैसी है कैटेगरीज? दीज आर अरेंज इन असेंडिंग, नहीं, दीज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर से नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर से. ओके, सो दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो नाउ इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज द फर्स्ट कैटेगरी इज अ किंगडम. तो हम लोग वन कैटेगरीज देखेंगे. सो व्हाट इज अ किंगडम? So kingdom is the highest taxonomic categories composed of different sub kingdoms. किससे बनी है? Composed of different sub kingdoms. So once again I will repeat, what is kingdom? Kingdom is the highest taxonomic categories composed of different sub kingdoms. Okay, for example plant की बात करें हम लोग, kingdom phanerogams and cryptogams include in kingdom प्लांटे. तो किंगडम क्या है? प्लांटे. और प्लांटे में सब किंगडम कौन से हैं? फेनोरोग्राम्स, सीड बेरिंग प्लांट, एंड क्रिप्टोग्राम्स, नॉन सीड बेरिंग प्लांट्स. सो अनदर एग्जांपल हियर. सो यहाँ पे देखो नीचे एग्जांपल दिया है. ऑल द एनिमल्स शेयर सम कॉमन फीचर लाइक ऑल हैविंग अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, presence of collagen in the cell wall, therefore all the animals will belonging to kingdom animalia. So जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड से लेके मैमल से लेके जितने भी कॉर्डेट से नॉन कॉर्डेट से किस में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया. प्लांट्स किस में आते हैं? किंगडम प्लांटे इंक्लूड. प्लांटे में क्या आता है? सब किंगडम, फेनरोगैम्स एंड क्रिप्टोगैम्स. सो मेन ब्रॉडली क्लासीफाई किंगडम देखो, प्लांटे है, एनिमल है, फंजा है, प्रोटिस्टा एंड Monera. These are the 5 kingdoms, main 5 kingdoms. So what is kingdom? Kingdom is the highest category in a taxonomic classification. Okay, so kingdom include different types of, it is composed of different types of sub kingdoms. Okay, all the animals include in kingdom animalia. All the plants in kingdom plantae include sub kingdoms, phanerogams and cryptogams. So there are main 5 kingdoms: Plantae, Animalia, Fungi, Protista and Monera. So now next one is a phylum. So what is phylum? Phylum is a second category. Phylum is a second category of biological classification. So it includes the group of closely related organism. It includes
the group of closely related animals. So phylum chordates include all these animals which are shown in the below diagrams. डायग्राम में देखो आप लोग फाइलम कॉर्डेटा में कौन कौन से फाइलम कॉर्डेटा में क्या है, ऑल एनिमल्स बेरिंग अ स्पाइनल कॉर्ड. ये सब एनिमल को क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड. सो ऑल दिस आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेट्स. जो आपको दिख रहे हैं क्लियरली विजिबल है, ऑल दे आर इंक्लूड इन कॉर्डेट्स बिकॉज दे आर ऑल हैविंग स्पाइनल कॉर्ड. Okay, so these are the chordates. So what is phylum? It is the second largest category and it include closely related organism. तो यहाँ पे देखो all the chordates, phylum chordates include all the spinal cord bearing animals. तो ये वो आपका phylum. Now next one, what is class? It is a group of related subclasses and it is a third category. It is a group of related subclasses and third category of biological classification. So it include number of orders, related orders. So आप लोग यहाँ पे देखो क्लास में देख सकते हैं group of class in plants. The class Dicot include subclass Polypetalae and Gamopetalae. So these are the classes. What is class? It is a third category, third main category. इसके बीच में भी categories division से वो नहीं लेते हम लोग. These are the main third category. It include all the related subclasses. तो in example plant, in plant में class Dicotyledone include subclass Polypetalae and Gamopetalae. Okay. Another example, there are 4 orders है. यहाँ पे देखो नीचे example like Mammalia is a class. मैमलिया क्या है, क्लास. ऑर्डर, ऑल द रिलेटेड ऑर्डर इंक्लूड मार्सुपिलिया, कांगारूज आते हैं, कैटेसियन आते हैं, इंक्लूड वेल, कार्निवोरा इंक्लूड लायन, टाइगर, प्राइमेट्स, एप, ह्यूमन. ये सब किस में आते हैं, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया. तो उसके मैमेलिया के ऑर्डर कौन से, मार्सुपिलिया, सिटेसियन, कार्निवोरा एंड प्राइमेटा. ओके, ऑल दिस 4 ऑर्डर share some similar features, characters, because all they are having a mammary gland and presence of hair on a skin. सब में एक common characteristics क्या है, mammary glands, all they are mammals. Okay, presence of hairs on a skin, so they are included in class Mammalia. Okay, so ये हुआ क्लास आप लोग देख सकते हो. क्लास Mammalia में ये एनिमल्स है जिसमें वेल है, कांगारू है, कांगारू मार्सुपिलिया में आता है. ओके, वेल जो दिया है आपको वो वेल किस में आता है, सिटेसियन में आता है. वेल दिख रहा है आपको, सिटेसियन. मार्सुपिलिया में कांगारू आ रहा है, वेल सिटेसियन में आ रहा है. ओके, ह्यूमन बींग्स, एप्स, यहाँ पे ह्यूमन बींग का डायग्राम नहीं है, या मंकी का छोटी सी डायग्राम है देखो यहाँ पे. तो ऑल दीज आर इंक्लूड इन प्राइमेट्स. सो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस, इंक्लूड डिफरेंट ऑर्डर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, orders. So what is order? It is a fourth main biological category in classification, which comprise of one or more related families. So order include one or more related families. So once again I will repeat, what is order? Order is a fourth main category in biological classification. It include one or more related families. For example, Felidae is a family which include dog and Canidia. So now Canidia family include cat, fox, wolf. तो ये देखो फैमिली कौन सी यहाँ पे, फिलिडिया है. तो फिलिडिया में क्या क्या आता है, डॉग्स. एंड कैनिडिया फैमिली में क्या आता है, कैट, फॉक्स, वुल्फ. सो इट बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्डर, कार्निवोरा. सो कार्निवोरा में ऑर्डर में देखो यहाँ पे फिलिडिया दिया है पूरा. सो जितनी भी कैट फैमिली है, कैट फैमिली में दीज आर द फैमिली फिलिडिया. ओके, उसमें कैट भी इंक्लूड हो रही है, टाइगर भी इंक्लूड हो रहा है, जैगुआर भी इंक्लूड हो रहा है, लायन, ऑल दीज आर इंक्लूड इन फिलिडिया. सो व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज अ फोर्थ कैटेगरी of biological classification which compose of one or more related family. Okay, so now Felidae family include order Carnivora, or Carnivora में Carnivora and Canidia. So Carnivora animal having a common feature like small collarbone, strong sense, strong teeth. तो आप लोग इस एनिमल में
स्मॉल कॉलर बोन, सबकी कॉलर बोन कैसी है, स्मॉल है। दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंसेस, इनको सेंस ऑफ पावर, सूंघने की आदत ज़्यादा रहती है कुत्ते बिल्ली में सब इसमें, बिकॉज दे इंक्लूड इन कार्निवोरा। एंड स्ट्रॉन्ग टीथ, सबको कैनाइन टीथ है जो हड्डी को भी चबा सकते हैं। सो दीज आर इंक्लूड इन ऑर्डर। सो नाउ नेक्स्ट वन इज अ फैमिली. So it is a fifth category of biological classification. It composed of group of related genus. So they share some similar characters. So यहाँ पे देखो जीनस दिया है, कैट का जीनस कौन सा है, फिलिस। एक डायग्राम में सब कैट है, सो दे आर इंक्लूड इन जीनस. सो फैमिली कंपोज ऑफ मेनी जीनस. ओके, फॉर एग्जाम्पल फिलिस include cat, Panthera. These are the genus. So all Panthera and Felis both are included in family Felidae. तो Felidae में आप लोग यहाँ पे लास्ट डायग्राम में देख सकते हैं, कैट भी आ रहा है. कैट फैमिली में तो वाइल्ड कैट है, लिनक्स है, ये सब किस में आ रहे हैं, फिलिस में. और यहाँ पे साइड में जो डायग्राम है वो पैंथरा है. बोथ आर जीनस, पैंथरा जीनस एंड फिलिस जीनस, एंड बोथ द जीनस आर इंक्लूड in family Felidaceae. So what is family? Family is composed of many genera. Okay, they having some similar characteristics. ये वो आपका family. Now next one is a genus. It is a sixth category of biological classification which comprise of many species. So genus include many species. Sixth category है, इट इंक्लूड मेनी स्पेशीज. जीनस में क्या है, फैमिली में जीनस है तो जीनस में स्पेशीज है. ओके, सो दे शो सम सिमिलर, मेनी सिमिलर कैरेक्टर्स. उसमें जीनस में बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा है कंपेयर टू द फैमिली. जैसे हम लोग ऊपर ऊपर जाते हैं उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ा बदल हो जाए, मगर जब नीचे की कैटेगरी पे आते हैं हम लोग जीनस और स्पेशीज की तरफ, सो दे आर शेयर मोर रिजेंबल कैरेक्टर्स. ओके, सो दे आर इंक्लूड. अभी यहाँ पे देखो जीनस का मैंने एक जीनस दिया है पैंथरा, जीनस पैंथरा है. तो जीनस पैंथरा में जितने भी टाइगर, लायन सब है, सब पैंथरा में आते हैं, बट देयर स्पीशीज आर डिफरेंट. तो नाउ नेक्स्ट वन इज अ स्पीशीज. सो व्हाट इज स्पीशीज? इट इज द लास्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लास्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, सो नाउ दिस इन द स्पीशीज द सेम स्पीशीज कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर. स्पीशीज में एक ये स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ दूसरा उसी स्पीशीज़ को इंटरब्रीड कर सकती है. सो दे आर क्लोजली रिलेटेड, दे कैन इंटरब्रीड टू ईच अदर इन द नेचुरल कंडीशन. ओके, दीज आर कॉल्ड एज अ स्पीशीज़. सो स्पीशीज़ आर हाईली डाइवर्सिफाई इन नेचर. वन स्पीशीज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर. इसलिए देखो हॉर्स की अलग स्पीशीज़ है तो उसी फैमिली में आपको डोंकी की स्पीशीज़ अलग है. तो दोनों स्पीशीज़ कैसे अलग है. ओके, सो जेब्रा भी उसी फैमिली में आता है, बट दे हैविंग अ डिफरेंट स्पीशीज. सो इट इज़ अ लास्ट कैटेगरी है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, एंड दे कैन इंटरब्रीड. स्पीशीज में क्या होता है, इंटरब्रीड. सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स एक ही स्पीशीज में आते हैं. ओके, अपना ह्यूमन बींग का जो बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियन सैपियन. तो हम लोग सैपियन सैपियन में आते हैं. सैपियन सैपियन इज़ अवर स्पीशीज. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. बहुत सारे टैक्सोनॉमिक वर्ड हम लोगों ने देखा, बहुत इजी है. ओके, टेक केयर.